बेटा आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? आप लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा? यस मिस। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी हैव ओनली अ फ्यू पार्टिसिपेंट्स। इफ मोर पार्टिसिपेंट्स जॉइन अस इन 2 मिनट्स देन विल स्टार्ट। अगर नहीं करते तब भी विल स्टार्ट, ठीक है? जस्ट वेट फॉर 2 more minutes, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, विल स्टार्ट। हमारे पास हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था, जो स्टार्ट किया था सॉर्ट ऑफ, वो था जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक, ठीक है? अब जो जीन एक्सप्रेशन है, मैंने आपको बताया था जीन एक्सप्रेशन में वी हैव टू थिंग्स, ट्रांसक्रिप्शन और आपका ट्रांसलेशन। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होती है, ठीक है? अब ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली हमारे पास ये जो जीन एक्सप्रेशन है, उस जीन एक्सप्रेशन का मैंने कल आपको मतलब बताया था। जीन एक्सप्रेशन का मैंने कल आपको मतलब बताया था। जीन एक्सप्रेशन क्या होती है? बेसिकली इज अ टाइप ऑफ फिनोमिना जिसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ, सही है? एंड व्हाट हैपेंस इज दैट दिस जीन एक्सप्रेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें ये दोनों चीज़ें तो होती हैं, बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज दैट अ होल sequence of phenomena through which a gene expresses itself. At the end of this process we get a type of protein, and because of that protein formation a gene is able to express itself. That's why we say that both transcription and translation both are a part of a process which is known as gene expression. How gene expresses itself? It expresses itself by producing a particular type of enzyme. That's how it is able to express itself, ठीक है? तो starting from the first step of gene expression, that is transcription, ठीक है? इफ यू सी द टॉप मोस्ट डायग्राम ऑफ माई स्लाइड देन यू विल बी एबल टू सी अ जीन, ठीक है? द 5 जीन एक्सप्रेशन में यू कैन सी दैट देयर इज अ जीन एंड देन देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन एरो, and then you can see the primary RNA transcript, then there is the process of processing. फिर उसके बाद you can see mRNA, tRNA, rRNA, which are the 3 types of RNA that are formed, ठीक हो गया? And then there is transport to the cytoplasm, means that when we will form messenger RNA, whereas messenger RNA produced, it is produced inside the nucleus. When the messenger RNA is produced inside the nucleus, it moves out into the cytoplasm, and how it moves is that it moves through the process of after the formation, by the process of transcription it moves out into the cytoplasm. वहाँ जाके it actually goes into the second step, that is translation. And then you can see in the diagram that translation में we are forming a polypeptide. What is a polypeptide? It is a type of protein, and this protein is then modified and finally converted into a final protein that is known as functional protein. This is how the whole process goes. In the other diagram which is present on the right hand side, you can see that DNA hai, and that DNA undergoes transcription, forms messenger RNA. You can clearly see that DNA is double helix structure, messenger RNA is a single stranded structure, and this messenger RNA is then going to give rise to a protein by the process of translation, the central dogma. This process, whole process is also known as central dogma, ठीक है? So you can use both of these terms, ठीक? So starting from transcription, basically transcription में हो क्या रहा है, that in transcription we form messenger RNA, ठीक है? मैसेंजर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच मैसेंजर में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मैसेज भेज रहे होते हैं या कोई भी पैगाम भेज रहे होते हैं,
So messenger RNA works in the same way that it conveys your message from the nucleus to the cytoplasm to the ribosome that it's time to form proteins according to the given instructions. ठीक है? The first stage of gene expression is the production of an RNA copy of the gene called messenger RNA. ठीक है? First stage क्या होती है gene expression की? होती है formation of RNA gene copy जिसको हम कहते हैं messenger RNA. ठीक है? अब ये मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है? यू कैन सी दिस इन दी फिगर 6.10. 6.10 में आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ डीएनए. अगर आप देखो राइट हैंड साइड पे तो डीएनए है, उस डीएनए की अनकॉइलिंग हुई हुई है एंड दैट अनकॉइल्ड डीएनए इज एक्चुअली गिविंग राइज टू अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर विच इज एमआरएनए. और एक बॉल जैसा आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जो कि एक खास एरो की तरफ उस तरफ मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे. तो ये बड़ा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डी एमसीक्यूज कि आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास मैसेंजर आरएनए फॉर्म कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है. ठीक है, अच्छा, लाइक ऑल क्लासेस ऑफ आरएनए दैट अकर इन सेल्स मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड ऑन अ डीएनए टेम्पलेट. अगर आप ये डायग्राम देखो तो आप देख रहे हो ना यार, ये पूरी डीएनए की डीएनए स्ट्रैंड्स है और इस डीएनए स्ट्रैंड पे आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? इस पे आपको नज़र आ रहा है एक अदद मैसेंजर आरएनए जो कि इस पे बन रहा है. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ दी डीएनए. सही है. लाइक ऑल क्लासेस ऑफ आरएनए दैट अकर इन सेल्स मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड ऑन अ डीएनए टेम्पलेट. यानी कि ये डीएनए टेम्पलेट के ऊपर मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है. द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. सिंपल हम आरएनए की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इस पूरे स्टेप को सिंपली हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है. सही. अच्छा, द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए इज कॉल्ड मैसेंजर ट्रांसक्रिप्शन. द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल एज वेल एज आरएनए क्लासेस जो बाकी हमारे पास है टी आरएनए एंड आर आरएनए जिसको हम कहते हैं आपका ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ये बाकी भी जो हैं यहाँ पर हमारे पास ट्रांसक्राइब हो सकती हैं या प्रोड्यूस हो सकती हैं फ्रॉम दी डीएनए. ठीक है. अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड व्हेन अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड एन आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कब स्टार्ट होती है? जब हमारे पास एक खास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज. ये खास एंजाइम स्टार्ट करता है डीएनए को की अनकॉइलिंग होती है और ये आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म करवाता है मैसेंजर आरएनए को अकॉर्डिंग टू दी डीएनए. ठीक है. The transcription is initiated when a special enzyme called RNA polymerase binds to a particular sequence of nucleotide on one of the DNA strand. This sequence is located at the edge of the gene. अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो you can see ये यूरेसिल है. ठीक है, ये देखो ये साइटोसिन है, यहाँ पे ये ग्वानिन होगा, ये यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ ग्वानिन है. अब यहाँ पर होता क्या है? ये पूरी डीएनए की स्ट्रैंड है. इस डीएनए की स्ट्रैंड पे अगर यहाँ ग्वानिन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या फिर मैसेंजर आरएनए में हमारे पास क्या होगा? साइटोसिन होगा. सिमिलरली यहाँ पर डीएनए के अंदर अगर यहाँ पर मेरे पास कौन सी बेस है? साइटोसिन है. तो इसका मतलब है कि जो नई आरएनए की स्ट्रैंड फॉर्म हो रही है उस आरएनए की स्ट्रैंड पे हमारे पास साइटोसिन यहाँ पर था डीएनए में, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास कौन सी बेस होगी? आरएनए के अंदर हमारे पास ग्वानिन होगी. तो दिस डीएनए इज एक्चुअली कन्वेइंग इट्स मैसेज या सिग्नल इस तरह से कि वो अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड या अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस वो क्या करता है? सामने वाले मैसेंजर आरएनए के अंदर जो भी बेस होगा उसकी सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है. ठीक है. Starting at that end of the gene, the RNA polymerase proceed to assemble a single strand of RNA. ठीक है, एक ये कोने पे जाकर या एक कॉर्नर पे जाके RNA polymerase वहाँ से अपना काम शुरू करता है और वहाँ से ये अपना काम स्टार्ट करते करते पूरी डीएनए की चेन को या डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं उनको अनकॉइल करके ये क्या करता है कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए फॉर्म करवाता रहता है. सही है. The RNA polymerase proceed to assemble a single strand of RNA with a nucleotide sequence complementary to that of the DNA strand it has bound. मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जिस भी डीएनए की उससे जाकर बाइंड होगा तो क्या होगा? हमारे पास बेसिकली उसी के अकॉर्डिंगली ये या उसी के कॉम्प्लीमेंट्री ये प्रोड्यूस करेगा आरएनए के अंदर जो भी बेस होगी. ठीक है. Complementarity refers to the way in which the two single strands of DNA that form a double helix relate to one another. कॉम्प्लीमेंटेरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको वाटसन एंड क्रिक मॉडल में भी बताया था कि अगर सामने वाले स्ट्रैंड में एडेनिन है तो पड़ोस वाले में थाइमीन होगा. ठीक है, सामने वाले में थाइमीन है तो पड़ोस वाले में एडेनिन होगा, सामने वाले में साइटोसिन है तो पड़ोस वाले में ग्वानिन होगा. ठीक है, तो ये सारा सिलसिला इस तरह से चलता रहता है. ये मैंने आपको वाटसन एंड क्रिक मॉडल में बताया था. सही है. अच्छा,
Complementarity refers to the way in which the two single strands of DNA that form a double helix relate to one another. इसको complementarity कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक DNA का strand complementary होता है to the other one according to the arrangement of the nucleotides. ठीक है. अच्छा, विथ ए एडेनिन पेयरिंग विथ थाइमीन, जैसे मैंने आपको बताया एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर करता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ करता है, एंड आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द, नीचे क्या लिखा हुआ है आई डोंट थिंक सो मेरी स्लाइड में नज़र आ रहा है, अगर आपके पास बुक है तो आप टाइप करके मुझे बताओ इसमें आगे क्या लिखा हुआ है ताकि मैं वो बात भी समझा दूँ. ठीक है. अच्छा, as the RNA polymerase moves along the strand into the gene encountered, each DNA nucleotide in turn it adds the corresponding complementary RNA nucleotide to the growing RNA strand. यही मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में भी बताई बात कि ये पूरा एन आरएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थाइमीन इज यूरेसिल. हाँ, हमारे पास आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता, वी इंस्टेड हैव यूरेसिल. डीएनए में यूरेसिल नहीं होता. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आरएनए स्ट्रैंड होता है उसमें जैसे अगर सपोज करो डीएनए में यहाँ कहीं थाइमीन है तो हमारे पास यहाँ जो है वो, सॉरी, अगर डीएनए में यहाँ कहीं एडेनिन है तो हमारे पास यहाँ आरएनए में थाइमीन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यूरेसिल आएगा. ठीक है, तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सही, तो यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस ऑफ दी न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे पास मौजूद है डीएनए में, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आरएनए के अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा. ठीक. When the enzyme arrives at a special stop signal at the far edge of the gene, it disengages from the DNA. ठीक है, पूरी जब आपने डीएनए को हमने अनकॉइल कर लिया और पूरे डीएनए को आपने वो करवा लिया, उससे आपने मैसेंजर आरएनए फॉर्म करवा लिया, तो क्या होगा, एक एंड पे, जब ये इसके एंड पे पहुंच जाएगा, कौन सी चीज़, आरएनए पॉलीमरेज, तो ये इससे डिसंगेज हो जाएगा. ठीक है, इट डिसंगेजेस फ्रॉम द डीएनए एंड रिलीजेस द न्यूली असेंबल्ड आरएनए चेन. यानी कि ये इससे पूरा डिसंगेज होने के बाद व्हाट इट डज इज दैट इट रिलीजेस द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए चेन, बिकॉज ऑब्वियसली द होल पर्पस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैज बीन अचीव्ड. So after the completion of this process, it will disengage, it will get separated from the DNA and will release the newly formed messenger RNA chain so that it can go out from the nucleus into the cytoplasm. ठीक है. This chain is complementary to the DNA strand from where the polymerase assembled it. Obviously, the particular type of strand या particular type of DNA from which the RNA was formed, this RNA is actually the complementary structure of the DNA which was involved in its formation. ठीक है. So what we call it? We call it is an RNA transcript. What is a transcript? It is a type of copy. The meaning of transcript is copy. So basically we call it RNA transcript. Why? या प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बिकॉज इट इज़ द कॉपी और फोटोकॉपी और बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका और रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीन. सही है. तो ये दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच वी यूज डीएनए स्ट्रैंड या डीएनए डबल हेलिक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, एंड दिस मैसेंजर आरएनए इज एक्चुअली formed because of the RNA polymerase, which is the actual enzyme responsible for formation of the messenger RNA. Any question? कुछ सवाल है तो पूछो जल्दी से, नहीं तो मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करूँ. बेटा सब क्लियर है या नहीं है?
Next step is translation. The second stage of gene expression is the synthesis of a polypeptide by ribosome. हमारे पास second stage में क्या होता है? पहली stage हमारे पास थी उसकी आपकी उसकी क्या नाम है ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है. सेकेंड स्टेज क्या है? ट्रांसलेशन, जिसमें हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रही होती है या एक प्रोटीन फॉर्म हो रही होती है, ठीक है. The second stage of gene expression is the synthesis of a polypeptide by ribosome, which use the information contained in an mRNA molecule to direct the choice of amino acid. Diagram में आप देखो तो आप देख सकते हो ठीक है. डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है. मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए. ये मैसेंजर आरएनए इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस. दिस यू कैन सी द डीएनए ओवर हियर, और ये हमारे पास द मैसेंजर आरएनए इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम दिस डीएनए. And you see that this messenger RNA is coming out of the nucleus. It is entering into the cytoplasm. And the second step you can see over here is that tRNA. What is a tRNA? This is the tRNA. ठीक है. This is a type of RNA, ribonucleic acid, which is known as tRNA, means transfer RNA. Why do we देखो there are three types of RNA. mRNA means messenger RNA. The other one is rRNA, which is the ribosomal RNA, and this one is the tRNA, that is transfer RNA. ठीक है. Transfer RNA, we call it transfer RNA because you can see that it is actually responsible for transferring these amino acids to this part, and after transferring it to this part, it is actually responsible for making or growing this polypeptide chain. So it is transferring these amino acids. That's why we say that it is transfer RNA. We call this one messenger RNA because it is taking the message from the nucleus towards the cytoplasm or towards the ribosome. Okay. So this messenger RNA is basically mRNA is known as messenger RNA because this messenger RNA is carrying the message. ठीक है. And this is the transfer RNA, which is actually carrying the amino acid or transferring the amino acids. That is why we call it tRNA. ठीक. Now the second step is that this tRNA will bind the amino acid. These are the random amino acids present in the cytoplasm. This tRNA will use ATP. Obviously, it is an energy consuming process, so it will use ATP, which is the energy currency. After using the ATP, this ATP will get changed into ADP, and after the usage of this energy currency, it will attach the amino acid molecules to its topmost part, and after binding, this will carry it to the ribosome. ठीक. The third step is that loaded tRNA bonds with them. ठीक है. You can see यहाँ पर मेरे पास ये टैब में कुछ issue आ रहा है. Okay, loaded tRNA bonds to ribosome. You see that this tRNA has been loaded with an amino acid. It goes over here, and this loaded tRNA will bind to the ribosome. This is the ribosome. This large structure you see over here is the ribosome. This is the tRNA, and you see that this tRNA has actually attached itself to the ribosome and to the messenger RNA. The messenger RNA is carrying the whole message from the DNA. So it has attached itself to the messenger RNA, the ribosome, and it has also attached the neighboring amino acid to form the polypeptide chain. ठीक. Now the fourth step is that growing polypeptide chain. Obviously, when you see that there is one of the transfer RNA, here is another transfer RNA. Both of them are bearing an amino acid. Both of them will get attached to each other. There will be formation of bond. And after the formation of this peptide bond, we call it peptide bond because obviously this is being formed between an amino acid and the other amino acid. So we say that it is the formation of a peptide bond. This peptide bond will be formed, and continuously this chain will get elongated, and it will give rise to a very large or very big growing polypeptide chain, and this will be known as the protein. Obviously, the fifth step is complete protein. When the whole chain will grow, the whole chain will be formed, all of the amino acids will be attached to each other by the peptide bond. It will give rise to a protein, and this was the whole purpose and the whole we can say the mission or the use of this whole process is that we have to form the protein. And why we have to form the protein and why we call it gene expression, I have told this multiple times that the gene expresses itself in the form of the formation of protein. So this is the whole process of gene expression, in which we have first step, that was transcription, in which we use messenger RNA, in which we form messenger RNA basically from the DNA.
by the use of RNA polymerase. Okay, and then in second step, this messenger RNA will move from the nucleus into the cytoplasm, will attach to the ribosome. What will happen next is that a transfer RNA is going to come, and that transfer RNA is not alone. It has an amino acid attached to it, and how it attaches the amino acid to itself is by using ATP. It is an energy consuming process, an active process. It uses ATP. The amino acid gets attached to the topmost part of the transfer RNA, and this transfer RNA is known as transfer RNA because it is transferring the amino acids to the ribosome. After the attachment of the amino acid to the tRNA, this will go to the ribosome, will get attached to the ribosome and to the respective part of the messenger RNA. And after this attachment, it will what will happen is that the amino acid which were present on the top of the tRNA, they will get attached to each other. They will form a peptide bond. And because of this formation of peptide bond, a long chain of amino acids will get attached to each other, will form a bond, and will give rise to a polypeptide chain. This polypeptide chain will, in the last step, it will get modified into a complete protein. So this is the whole mechanism of gene expression, having two steps: transcription and translation. So yes, so you have this written over here, and overview of protein synthesis. So this is how protein is formed. Okay. One thing that I missed over here during translation, the codons of mRNA. What are the codons? Codons are basically the genetic codes. You can see over here that there are three codons: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So these are the genetic codons. Okay? These codons are basically present in these sets of three mostly, and they are actually responsible for directing that which type of protein or which type of amino acid will come over here and attach to it. Okay? And these codons are basically made up of the nitrogenous bases again. So yeah, it can be CAG, it can be ACG. We have studied this as well, I think in this chapter. I don't remember where we did it, but I think it was in this chapter. But anyways, during translation, the codons of mRNA base pair with the anticodons of tRNA. You see over here, these are the codons which are present in the messenger RNA, and these are the anticodons, means the opposite structure, the opposite or the complementary part which is present on the tRNA. These are the anticodons. So this codon which is present on the messenger RNA, this will get paired up with its respective anticodon which is present on the transfer RNA. Okay? And with the anticodons of tRNA molecules carrying a specific amino acid, each amino acid has a specific type of anticodon and codon. So this is the whole mechanism of प्रोटीन फॉर्मेशन. सब क्लियर है? ये जीन म्यूटेशन में पढ़ा चुकी हूँ बेटा या नहीं पढ़ाया मैंने? मुझे लग रहा है मैं ये पढ़ा चुकी हूँ. आई गेस आपको पढ़ाया है, पता नहीं बॉयज़ को पढ़ाया है. जीन म्यूटेशन हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अच्छा, हमने नहीं पढ़ी है जीन म्यूटेशन.
ठीक है, देखो जीन म्यूटेशन में ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें कोई ख़ास बात नहीं लिखी हुई। द मेन थिंग इज़ ये जो सारा पार्ट है आयनाइजिंग रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेस और केमिकल म्यूटेशंस, ये सारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन में बेसिकली म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एनी काइंड ऑफ चेंज, कोई भी चेंज अगर आ रहा है, इट कैन बी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स जो कि लिखे हुए हैं, विच इंक्लूड दी ionizing radiation, chemical mutagens and UV rays। ठीक है, तो I'll start from the ionizing radiations। high energy अच्छा एक सेकेंड, हमारे पास ये नेक्स्ट पेज पे UV rays और केमिकल है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा बेटा, आयनाइजिंग रेडिएशन में बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज एक्स रेस एंड गैमा रेस। आपको पता है एक्स रेस और गैमा रेस बोथ ऑफ देम आर आयनाइजिंग रेडिएशन, तो बोथ ऑफ देम आर हाईली म्यूटेजेनिक। ठीक है, दे कैन इजीली कॉज म्यूटेशंस। न्यूक्लियर रेडिएशन इज ऑफ दिस सॉर्ट, यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रेडिएशन है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि इजीली डैमेज कॉज कर सकता है। सही है, व्हेन सच रेडिएशन रीचेस अ सेल इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम्स दैट इट इनकाउंटर्स। जब भी हमारे पास ये रेडिएशन किसी भी सेल से एक्सपोज होती है, ठीक है, किसी भी सेल के ऊपर की जाती है, इम्पोज की जाती है, तो क्या होता है कि एब्जॉर्ब की जाती है बाय द एटम्स। एटम्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस भी स्ट्रक्चर पे किसको आपने इम्पोज किया उसके अंदर जो भी एटम्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इम्पार्टिंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या कि क्योंकि ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अल्फा रेज, गैमा रेज, ये सारी चीज़ें, तो जब ये गैमा रेज जाकर या एक्स रेज जाकर एटम से अटैच होती हैं, मतलब एटम्स के ऊपर जाकर ये हिट करती हैं, और तो क्या होता है एटम्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एटम्स जब इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है कि ये इसके जो अंदर आपके जो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने जो लोअर एनर्जी लेवल से बड़े एनर्जी लेवल की तरफ चले जाते हैं, दे सॉर्ट ऑफ जंप, और वो आउटर एनर्जी लेवल या आउटर शेल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। एंड कॉजिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड फ्रॉम द एटम्स। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी इम्पार्ट हो जाती है तो इट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ कि वो बिल्कुल इजेक्ट ही हो जाए आउट ऑफ द एटम। ठीक है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स लीव बिहाइंड आयनाइज्ड एटम। अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर देते किसी भी एटम से, सो वी नो दैट इट फॉर्म्स एन आयन। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक अदद आयन प्रोड्यूस हो जाता है। सही है, विच इज़ नोन एज फ्री रेडिकल। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं बेटे, हम इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अ सेल्स एटम्स रिजाइड इन वाटर मॉलिक्यूल एंड नॉट डीएनए, द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्रिएटेड बाय आयनाइजिंग रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स एंड नॉट डीएनए। हमारे पास यहाँ पर जो ज़्यादातर जो सेल के जो एटम होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, डीएनए के अंदर नहीं। तो ज़्यादातर हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, डीएनए के ब्रेकडाउन की वजह से नहीं प्रोड्यूस होते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डैमेज दैट द डीएनए सफर्स इज दस इनडायरेक्ट, यानी कि हमारे पास जो डीएनए को डैमेज होता है वो डायरेक्ट नहीं होता कि हमारे पास आयनाइजिंग रेज आई और उन्होंने डायरेक्टली डीएनए को डैमेज कर दिया। नो, हमारे पास पहले डैमेज होता है टू दी वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल डैमेज की वजह से आयंस बनते हैं, या हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल जाके फिर डीएनए के अपने स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। सो दिस इज टोटली इनडायरेक्ट फिनोमेना। ठीक है, इट अकर्स बिकॉज फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव केमिकली, क्योंकि आपको पता है जब भी हमारे पास एक आयन प्रोड्यूस होता है तो वो अगर वो पॉजिटिव आयन है तो वो जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, नेगेटिव है तो वो मतलब इस तरह समझ रहे हो मेरी बात। सो इट जस्ट ट्राइज टू पेयर इट सेल्फ विद एनी आयन, या किसी भी एटम से पेयर करने की कोशिश करता है या कुछ गेन करने की, लूज करने की कोशिश कर रहा होता है। सो दैट्स वाई फ्री रेडिकल्स या ये जो हमारे पास बने आयन दे आर वेरी रिएक्टिव, और इस वजह से दे रिएक्ट वायलेंटली विद द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल एंड वन ऑफ देम इज डीएनए। इस वजह से डीएनए को डैमेज होता है। ठीक है,
When a free radical breaks both phosphodiester bonds of a DNA helix, double strand break, हमारे पास जो DNA का पूरा निज़ाम है ना, वो पूरा निज़ाम मेंटेन हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स या बिटवीन द डिफरेंट बेसिस, और वो बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाते हैं. दीज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन बोथ ऑफ द डीएनए हेलिक्स. ठीक है. द सेल्स यूजुअल म्यूटेशनल रिपेयर एंजाइम्स, हमारे पास क्या होता है सेल के अंदर यूजुअली क्या होता है, एक हमारे पास कुछ पेयर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि म्यूटेशनल रिपेयर का काम करते हैं, यानी कि कोई भी म्यूटेशन हुई है तो उसको रिपेयर कर दिया, वो वाला काम इसका कर रहे होते हैं. ये हमारे पास सेल के अंदर यूजुअली मौजूद होते हैं. ठीक है. टू रिपेयर अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक, जब भी हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक होती है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स, तो क्या होता है कि टू रिपेयर अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक द टू फ्रेगमेंट्स क्रिएटेड बाय द ब्रेक मस्ट बी इमोबिलाइज, यानी कि हमने जो भी फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेक, बिकॉज ऑफ द रेज या बिकॉज ऑफ दी फ्री रेडिकल्स, वो जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हमने इमोबिलाइज करना होता है एंड टू एंड, सो दैट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैन बी रिफॉर्म्ड, यानी कि जो डीएनए का हिस्सा टूटा है या जो हिस्सा डैमेज हुआ है, ब्रेक हुआ है बिकॉज ऑफ द आयनाइजिंग रेज, उन दो हिस्सों को जो टूटे हैं उन दो हिस्सों को आपने यू हैव टू इमोबिलाइज देम, वी हैव टू पुट देम टुगेदर एंड टू एंड, ताकि हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि इनिशियल बॉन्ड था, जो कि दोनों के कनेक्शन को मेंटेन रखा हुआ था, वो दोबारा से रीफॉर्म हो सके. ठीक है. बैक्टीरिया हैव नो मैकेनिज्म दैट कैन अचीव दिस अलाइनमेंट, हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जो इस चीज़ को अचीव कर सके. एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स आर लीथल टू देयर डिसेंडेंट्स, यानी कि बैक्टीरिया को अगर आप इस आयनाइजिंग रेज से एक्सपोज करवा दो तो उनके पास जो उनका ये जो म्यूटेशनल रिपेयर एंजाइम्स होते हैं, दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, या होते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो अपना डीएनए वो डैमेज कर चुके हैं, कर बैठे हैं, उसको दोबारा से दे कैन नॉट रीफॉर्म द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई इट कैन प्रूव लीथल टू देम, उसके जो डिसेंडेंट्स है, जिसकी प्रोजेनी है, उसके लिए लीथल हो सकते हैं. Eukaryote, almost all of which possess multiple copies of their chromosome, are able to position the two fragments created by a double strand break end to end by using the synaptonymal complex. Synaptonymal complex क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास रिकॉम्बिनेशन वगैरह को मियोसिस के दौरान होता है, रिकॉम्बिनेशन को प्रमोट करता है, ये इसका काम होता है. ठीक है. अब होता क्या है कि इनके अंदर Eukaryote, almost all of which possess multiple copies of their chromosome, are able to position the two fragment created by a double strand break end to end, यानी कि हमारे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं, these are देखो ना, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, तो हमारे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं दोनों फ्रेगमेंट्स को आपस में पोजीशन, और जो डबल बॉन्ड का डबल स्ट्रैंड जो ब्रेक क्रिएट हुआ है, ये जो डैमेज हुआ है, उसको ये रिपेयर कर सकते हैं बाय प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ये हमारे पास मियोसिस के अंदर बेसिकली ये असेंबल हो रहा होता है, और ये क्या करता है, रिपेयर करता है या पेयर करता है द फ्रेगमेंटेड डुप्लेक्स विद अनदर कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम. In fact, it is thought that meiosis may have initially evolved as a mechanism to repair double strand break in DNA. क्योंकि हमारे पास साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ और मियोसिस के दौरान बनता है, तो ये भी एज्यूम किया जाता है कि ये जो पूरा मियोसिस का प्रोसेस है, ये मियोसिस का प्रोसेस हो सकता है कि डीएनए को रिपेयर करने के चक्कर में ही हमारे पास शुरू में प्रोड्यूस हुआ हो. ठीक है. अब अल्ट्रावायलेट रेस को जल्दी से देख लेते हैं, केमिकल म्यूटेशंस को जल्दी से देख लेते हैं. UV rays, the component of sunlight that leads to suntan, is much lower in energy than our X-rays. जो ultraviolet rays होती है उनकी एनर्जी तो काफ़ी कम होती है as compared to the X-rays, मगर obviously they are up to certain level, वो डैमेज भी क्रिएट कर सकते हैं. When molecules absorb UV rays, the radiation does not impart enough energy to cause the molecules to eject electron. जब UV रेस किसी भी चीज़ से एक्सपोज होती है, वो इतना ज़्यादा जो है वो उसमें एनर्जी नहीं होती कि वो मॉलिक्यूल्स को इजेक्ट करवाए. कॉन्सिक्वेंटली फ्री रेडिकल्स आर नॉट फॉर्म, यानी कि UV रेस इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सके या फ्री रेडिकल्स बनवा सके. ठीक है. दी ओनली मॉलिक्यूल्स दैट आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग UV रेडिएशन इन फैक्ट आर सर्टेन ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड्स, यानी कि वो ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड्स जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ मॉलिक्यूल्स का, तो दीज आर दी स्ट्रक्चर्स जो कि UV रेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ठीक है. और UV रेस को एब्जॉर्ब करने के बाद दे कैन अंडरगो दिस प्रोसेस, मगर मोस्टली क्या होता है हमारे पास, मोस्टली हमारे पास ये होता है कि ये जो है ना, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाता इसमें से, या फिर ऐसा नहीं होता कि जो है वो हमारे पास फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाए. ठीक है. केमिकल म्यूटेशंस में हमारे पास क्या होता है कि मैनी म्यूटेशंस रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए बेसिस. काफ़ी सारी ऐसी म्यूटेशंस होती हैं या काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं डीएनए की बेसिस के अंदर, जो कि हमारे पास एक तरह की म्यूटेशन है. ठीक है. द केमिकल्स दैट एक्ट ऑन डीएनए फॉल इनटू 3 क्लासेस. हमारे पास 3 तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि डीएनए को डैमेज करते हैं या डीएनए के अंदर म्यूटेशन करवाते हैं.
पहला हमारे पास क्या है, केमिकल्स दैट लुक लाइक डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि वो केमिकल्स जो कि तकरीबन सेम होते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब जाहिर बात है वो सेम है तो एक तरीके से वो धोखा दे देता है, इट चीट्स ऑन दी डीएनए, कि वो एक तरह से उसको धोखा देता है कि मैं भी एक न्यूक्लियोटाइड हूँ, और उसी चक्कर में डीएनए अपने आप को के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर देता है, जस्ट बिकॉज इट थिंक्स कि ये मेरे ही अंदर जो बाकी न्यूक्लियोटाइड्स है उसी की तरह का कोई एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सम केमिकल्स दैट रिमूव द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एडेनिन और साइटोसिन कॉजिंग देम टू मिसपेयर, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप जो है एडेनिन या साइटोसिन से हटा दे, जिसकी वजह से जैसे एडेनिन ने जिसके साथ पेयर करना होता है या साइटोसिन ने जिसके साथ पेयर करना होता है वो पेयर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमने उसको बिकॉज ऑफ द केमिकल एजेंट्स हमने उसको डैमेज कर दिया है। सही है। केमिकल्स दैट एड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स टू न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑल्सो कॉज देम टू मिसपेयर, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन ग्रुप को ऐड कर देते हैं टू द न्यूक्लियोटाइड बेसिस, दे कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डीएनए डैमेज।